السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاہد رحمانی. آج مورخہ 16 ستمبر ہے. پیش ہے دوربین کی تازہ ترین پیشکش. آج دوربین کے اہم موضوعات ہیں. بہار کو ملی بڑی سوغات. مودی نے پورنیہ ایئرپورٹ کا افتتاح کیا. 36,000 کروڑ کے منصوبوں کا تحفہ. وقف قانون پر سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ. کانگریس پارٹی نے کہا یہ آئینی اقدار کی جیت ہے. آدھار کارڈ اپ ڈیٹ ہوا آسان. اب نام کی غلطی موبائل سے کریں درست. چند منٹوں میں ہوگا کام. الیکشن کمیشن بی جے پی کا محکمہ. کانگریس لیڈر وینو گوپال کا بڑا الزام. ایس آئی آر پر سپریم کورٹ سخت. کہا بے ضابطگی ملی تو پورا عمل رد کر دیں گے. کانگریس پارٹی کا انکشاف. مودی نے اڈانی کو ₹1 سالانہ پر 150 ایکڑ زمین اور 10 لاکھ درخت دیے. غزہ پر حملہ تیز. نتنیاہو بولے امریکی اتحاد میں ہے طاقت. اسرائیلی حملوں پر قطر برہم. وزیر اعظم نے کہا دوہرے معیارات ختم ہو, اسرائیل کو سزا ملے. نیپال میں عبوری حکومت کی کابینہ تشکیل. سشیلا کارکی وزیر اعظم کے طور پر سرگرم. محمد سراج کی بڑی کامیابی. آئی سی سی نے نوازا پلیئر آف دی منتھ کے ایوارڈ سے. آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھنے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں. آپ فکر و نظر ٹی وی اردو پروگرام دوربین دیکھ رہے ہیں. بہار میں آئندہ چند ہفتوں میں اسمبلی انتخاب کی ووٹنگ کی تاریخ کا اعلان متوقع ہے اور اعلان سے پہلے ہی سیاسی جماعتیں بھرپور تیاریوں میں مصروف ہے. یاترا, ریلیاں اور جلسے عام جوش و خروش سے جاری ہے اور اہم انتخابی وعدے بھی منظر عام پر آ رہے ہیں. اسی سلسلے میں وزیر اعظم نریندر مودی بہار کے پورنیہ پہنچے, جہاں انہوں نے سول انکلوزیو کے ٹرمینل کے عارضی عمارت کا افتتاح کیا. یہ نیا ٹرمینل مقامی ہوابازی کی صلاحیت اور سہولیات بڑھائے گا اور علاقائی رابطوں کو مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہوگا. واضح ہے کہ پورنیہ اب بہار کا چوتھا کمرشل ایئرپورٹ بن چکا ہے. پٹنہ, گیا اور دربھنگا کے بعد پورنیہ ایئرپورٹ سے بالخصوص سیمانچل اور آس پاس کے اضلاع ارریہ, کٹیہار, کشن گنج, مدھے پورہ, سہرسہ اور سپول کے لوگوں کو آمد و رفت میں آسانی ملے گی. ابتدائی طور پر پورنیہ سے کولکتہ اور احمد آباد کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس فراہم ہوں گی. انڈیگو ایئر لائنز کولکتہ کے لیے ہفتے میں 3 روز فلائٹس چلائے گی. ٹرمینل کی افتتاحی تقریب میں بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار, نائب وزیر اعلیٰ وجے سنہا اور شہری ہوابازی کے وزیر رام موہن نائیڈو بھی موجود تھے. پورنیہ ایئرپورٹ میں ٹرمینل, بلڈنگ, ایئرپیس, کارگو کمپلیکس, ایس ٹی پی, واٹر اور فائر ٹینک, الیکٹرک سب اسٹیشن, ایویشنل فیول فارم, ایڈمن آفس, کمرشل پلازا اور اسٹیج طرز کی پارکنگ جیسی بنیادی جدید سہولتیں شامل ہیں. اس دن وزیر اعظم نے شیشہ باری ایس ایس پی گراؤنڈ میں 36,000 کروڑ روپے سے زائد کے متعدد منصوبوں کا بھی افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا اور عوامی جلسہ سے خطاب. کہا کہ پی ایم مودی نے کہا یوجنا کے تحت, آواس یوجنا کے تحت 40,000 سے زائد افراد کو پکے گھر مل چکے ہیں. انہوں نے اہلیان بہار کو عید اور تہواروں سے قبل اپنے نئے گھروں میں داخل ہونے کی مبارکبادی بھی پیش کی. سپریم کورٹ نے وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کی چند اہم دفعات پر عارضی طور پر روک لگا دی ہے, جس پر حزب اختلاف خاص طور پر کانگریس پارٹی نے جوش کا اظہار کیا اور خوشی کا اظہار کیا. عدالت نے اس قانون کی چند دفعات کو معطل کیا, جن میں وہ شق بھی شامل ہے جس کے تحت وقف بنانے کے لیے کم از کم پچھلے 5 برس سے باعمل مسلمان رہنے کی شرط رکھی گئی تھی. پورے قانون پر مکمل روک سے عدالت نے انکار کر دیا.
कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने इस फैसले को इंसाफ, मसावात और भाईचारा की आईनी इक़दार की फतह करार दिया। रमेश ने लिखा कि अबूरी हुक्म इस टेढ़ी नीयत को नाकाम बनाएगा जिसका मकसद समाज में तनाज़ा और नफरत को हवा देना था। अदालत ने इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वक्फ जायदाद की हैसियत के बारे में दिए गए कुछ इख्तियारात पर भी रोक लगा दी है और सेंट्रल वक्फ काउंसिल और रियासती वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबरान की तादाद पर अबूरी हदें भी तय कर दी है। सेंट्रल काउंसिल में 20 में से 4 से जायद गैर मुस्लिम नहीं और रियासती बोर्ड में 11 में से 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम अरकान नहीं। कांग्रेस पार्टी रहनुमाओं ने इस हुक्म इक़दामात को अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के सिमत में अहम पेशरफ्त करार दिया और कहा कि ये पार्लिमानी अखलाक़ात और शामिल अरकान की तशवीश को दुरुस्त साबित करता है। आधार शनाख्त को सबूत मगर शहरियत का हतमी सर्टिफिकेट नहीं, आधार कार्ड पर हिंदुस्तानी शहरी के लिए एक अहम दस्तावेज बन चुका है मगर उसकी हैसियत और हदूद पर बहस जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि आधार कार्ड को फैसला कुन दस्तावेज के तौर पर नहीं माना जा सकता और ये शहरियत का यकीनी सबूत नहीं है। आधार पर खुद ये लिखा होता है ये शनाख्त का सबूत है, शहरियत या तारीख़ पैदाइश नहीं और उसे तस्दीक के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आधार की इफादियत वाज़ेह है, ये फ़र्द की मुनफरिद शनाख्त फराहम करता है और एक शख्स के लिए सिर्फ एक आधार जारी होता है। इससे धोखाधड़ी और जाली शनाख्त के इम्कानात कम होते हैं। आधार को सिम कार्ड हासिल करने, एड्रेस प्रूफ के तौर पर सरकारी दफातर में पेश करने, बैंक अकाउंट्स और QIC, LPG सब्सिडी, पेंशन और स्कॉलरशिप जैसे समाजी सरकारी स्कीमों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अलबत्ता अदालत ने यह वाज़ेह किया कि वोटर लिस्ट या शहरियत के तकाज़ों के सिलसिले में आधार की हैसियत पर मखसूस मौक़े पर इजाफी जांच और एहतियात जरूरी है। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सी वेणुगोपाल ने इल्जाम लगाया है कि इलेक्शन कमीशन ECI अब बीजेपी का एक महकमा बन चुका है और ये आज़ाद व मुंसिफाना इंतखाबात के फर्ज से हट चुका है। वेणुगोपाल ने कहा है कि ECI के रवैये से बिहार में होने वाले स्पेशल इंटरव्यू रिविजन यानी SIR जैसे इक़दामात वोट चोरी के इम्कानात पैदा करते हैं, खास तौर पर जब आधार कार्ड को बतौर सबूत शामिल करने या उसके अखलाक के हवाले से उलझाव हो। उन्होंने कहा कि उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी अपोजिशन का फर्ज निभाते हुए आवाम के मसाइल, वोट चोरी, बेरोजगारी, खवातीन व कबायलियों के हुकूक पर आवाज़ उठा रही है और पार्टी तंजीम को मजबूत करने के लिए जिलाई सतह पर कमेटियां बनाई जा रही है। वेणुगोपाल ने मरकज और रियासत में बीजेपी के हुब्बुल वतनी के बयानिया पर भी तनकीद की और कहा कि बाज़ मौक़े पर सियासी मफाद के लिए जज्बात को हवा दी जाती है। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के मामले की समाअत हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जुवाई मालिया बागची की बेंच ने वाज़ेह किया है कि अगर SIR के अमल में आईनी ज़वाबित या बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी पाई गई तो पूरे अमल को मनसूख यानी ख़त्म कर दिया जाएगा। बेंच ने आइंदा समाअत 7 अक्टूबर के लिए मुकर्रर की और कहा कि बिहार SIR के बारे में अदालत का हतमी फैसला पूरे मुल्क में नाफिज होगा। अदालत इस मामले में टुकड़ों में हुक्म जारी नहीं कर सकती। अदालत ने अर्जी गुजारों को भी मुखातब किया है कि वो 7 अक्टूबर को अपने दलाइल पेश करे। याद रहे कि 8 सितंबर को जारी अदालती हिदायत में यह भी कहा गया कि आधार कार्ड को शहरियत करार न देने की बात कही गई थी। ताहम इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट में आधार की सदाकत जांचने की मशरूत इजाजत भी दी गई थी। इसके हुक्म को वापस लेने की दरखास्त पर भी अदालत नोटिस लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि भागलपुर के पेरीपेथ इलाके में गौतम अडानी को पावर प्लांट के लिए ₹1 सालाना की शर्त पर 1500 एकड़ जमीन और 10 लाख दरख्त दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के मीडिया व तशरीर महकमा के चेयरमैन पवन खेरा ने कहा है कि यह जमीन 33 साल के लिए इस कम शरह पर
अलॉट की गई है और इस मंसूबे की मुमकिना लागत 21 करोड़ 400 करोड़ रुपए बताई गई है। ये मंसूबा 2400 मेगावाट के बिजली घर के तौर पर पेश किया जाएगा और दावा किया गया है कि बिहार को यहां से बिजली 6000 यानी 6.075 रुपए फी यूनिट बचाई जाएगी, जबकि दीगर रियासतों में फी यूनिट लागत 3-5 रुपए के दरमियान बताई जाती है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि मकामी किसानों से जमीन जबरदस्ती ली जा रही है और कुछ मुजाहिरीन के दरमियान किसानों को नजरबंद करने की इत्तलात भी सामने आ रही है ताकि इफ्तिताही तकरीब में मुखालिफत पेश न आए। पार्टी ने इस मुआहिदे को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और मुतालबा किया है कि अगर बिहार में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बने तो ऐसे स्कीमात को रोका या मनसूख कर दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि आला अमरीकी सिफारतकार मार्को बिरो के हालिया दौरे ने अमरीका इसराइल ताल्लुकात की मजबूती को जाहिर किया। यह तबसरा ऐसे वक्त में सामने आया जब दोहा कतर में हमास के रहनुमाओं पर मुबैना इसराइली हमले पर इलाकाई और बैन अक़वामी सतह पर तशवीश पाई गई। नेतन्याहू ने इस ऑपरेशन का दिफा किया और कहा कि हमास क़यादत को निशाना बनाकर गजा जंगबंदी के अमल में रुकावट दौड़ेगी, जबकि कतरी हुक्काम और मुतअद्दिद अरब मुस्लिम रहनुमाओं ने इस हमले की सख्त मजम्मत की है। ये कशीदगी खित्ते में सालिसी के इम्कानात और जंगबंदी मुज़ाकरात पर भी असर डाल रही है और अमरीका इसराइल ताल्लुकात पर भी बातचीत जारी है। बैन अक़वामी तंजीमों और इंसानी हुकूक के हलकों ने गजा में इंसानी बहरान और तवील तनाज़ा की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराई है। हमास के रहनुमाओं पर होने वाले हमले के बाद कतर ने एक हंगामी सरबराही इजलास बुलाया जहां मुतअद्दिद अरब और इस्लामी रहनुमा शिरकत कर रहे थे। ये मुतवक्के थे कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने आलमी बरादरी से दोहरे मियार तर्क करने और इसराइल को जवाबदाह ठहराने का मुतालबा किया। इजलास में मुमकिना तौर पर ईरानी, इराकी, तुर्की और दीगर रहनुमाओं की शिरकत शामिल थी। इस इजलास का मकसद एक मुश्तरका मौक़िफ़ और मुमकिना करारदाद तैयार करना बताया गया। दोहा में इस किस्म की कॉन्फ्रेंस इलाकाई इत्तिहाद सालिसी और मुतासरीन के लिए इंसानी इमदाद के रास्ते खोलने के हवाले से अहमियत रखती है, ताहम उनका असर बैन अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ सियासी मफादात की वजह से पेचीदा रहता है। सुशीला कार्की की क़यादत वाली अबूरी हुकूमत ने चंद अहम वजारतों के उम्मीदवारों के नाम सदर रामचंद्र पाडेल को भेजे हैं। मुतवक्के नामों में ओम प्रकाश आर्याल वजीर दाखिला, रामेश खन्नाल को वजीर खजाना, कलमान गणेश को वजीर तवानाई और बाल आनंद शर्मा को वजीर दिफा नामजद किए जाने की तैयारियां शामिल हैं। जरा के मुताबिक पारस खटका का नाम यूथ एंड स्पोर्ट्स के लिए भी फाइनल किया गया है। सुशीला कार्की ने अबूरी हुकूमत को 2026 तक नए इंतखाबात कराने का वादा किया है और काबीना में बदअनवानी, मुखालिफत और माहिरीन को तरजीह देने की कोशिश की जा रही है। मुतवक्के तकर्रुरियां अगर हतमी हुई तो नेपाल की सियासी इस्तेहकाम और अवामी मुतालबात के मुताबिक एक अबूरी इंतजाम कायम करने में मददगार होगी। हिंदुस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को अगस्त 2025 के लिए आईसीसी मींस पीरियड ऑफ द मंथ के एजाज से नवाजा गया। सिराज ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार कारकर्दगी दिखाई। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज रहे और टेस्ट में उनके मुआसिर स्पेल को खास अहमियत दी गई। इसकी कारकर्दगी ने भारतीय बॉलिंग लाइन को मजबूत बनाया और सीरीज को बराबर करने में कलीदी किरदार अदा किया। फिक्र नजर की गुज़श्ता पेशकश में हारिस रहमानी, आदिल आलम, मोहम्मद आलम साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। हम आप तक पहुंचाते हैं सबसे अहम खबरें, वो भी दूरबीन की गहरी नजर से। अगले बुलेटिन के लिए अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।